Hello dear students, welcome back to Sciwise. Today in this video we are going to study about chapter 10, that is force and energy of class 5. ठीक है, ये class 5 का chapter है आपका force and energy. In this chapter बच्चे we are going to study about force, simple machine, energy. In this video I will talk about forces and this is part 1 of this chapter. ठीक है, very soon part 2 and part 3 also I'll upload. So starting with the chapter, get ready exercise. ठीक है, get ready exercise. इसमें क्या दिया है question? Write the name of the type of force being applied in each picture. Use the words given in the box. आपको ये पिक्चर्स देखनी है और बताना है कि कौन सा फोर्स अप्लाई किया गया है. सी इन पिक्चर नंबर 1 the students are able to write on the paper, means the students are able to draw on the paper. This is possible due to frictional force. So first is frictional force. Second, apple is falling downwards. It is gravitational force. Second is gravitational force. In third picture, you can see the bits of paper are attracted by a comb. This is electrostatic force. So number 3 is electrostatic force. Now here you can see in the picture that magnet attracts the board pins, right? So it is the magnetic force. So answer number 4 is magnetic force. Okay, force is applied in our day to day life also. ठीक है, हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी फोर्सेस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे फॉर नीडिंग डोर, pushing door, opening the door, ठीक है, turning on the pages, writing, all these are possible due to some amount of force applied on it. So when we push or pull an object, force is applied on it, or in other words we can say that force is the act of push and pull to an object. ठीक है, for example we use both push and pull action to knead a floor. We also apply different types of force in our daily life to do various tasks and activity. Now let us learn about force, energy and how we utilize them to make different machine works. Now force. As told you before also, push and pull applied on an object is called force. For an example, a player hits the ball. He or she applies the force on the ball. देखिए बच्चे, ये एक प्लेयर है, ठीक है, इसने क्या किया है, इस बॉल को हिट किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया है ना. तो बॉल क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी, है ना. बॉल यहां से हटके कहीं और चली जाएगी तो वो मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है. और इस मूवमेंट को हम क्या बोल देंगे, वर्क. अभी ये हम आगे और पढ़ेंगे अच्छे से. सिमिलरली व्हेन वी ओपन अ डोर, पुश अ कार्टून और प्ले फुटबॉल, वी अप्लाई फोर्स. जब हम डोर को खोलते हैं, कार्टून को पुश करते हैं, है ना, और फुटबॉल खेलते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं बच्चे, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है. अब फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, है ना. क्या होते हैं उसके, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. अब वो जब इफेक्ट्स क्या हैं वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा. इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मूव. जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाने के लिए भी हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल, while playing carom, force applied on the striker can make the coin move. Next, it can make the moving object move
faster. किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की हमें अगर स्पीड बढ़ानी है तो भी हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ फुटबॉल मैच, striking the ball makes the ball move even faster. Next, it can make moving object move slower. किसी moving object को slow भी कर सकता है force. For an example, touching a rolling ball on the ground makes the ball move slower. Next, it can make the moving object stop moving. और ये क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड इट स्टॉप्स. ठीक है, आप जब खेलते होंगे तो आप बॉल रोकने के लिए क्या करते हैं, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं बॉल को रोकने के लिए, आप उसको स्टॉप कराते हैं, तो वो क्या है, इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना. फॉर एन एग्जाम्पल, अ क्रिकेटर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल कमिंग टूवर्ड्स हिम बाय हिटिंग द बॉल विद हिज बैट. नेक्स्ट, it can change the size and shape of the object. For example, using a rolling pin on a dough changes the shape and size of the dough. जब हम रोलिंग पिन को डो के ऊपर रोल करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है. ठीक है बच्चे. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स कितने टाइप के हैं, अभी हम इसमें 8 टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल देखो बेटा, आप भी सुबेरे अपना स्कूल बैग उठा के स्कूल जाते हैं, है ना. तो क्या होता है, स्कूल बैग उठाने के लिए हमारी मसल्स फोर्स अप्लाई करती हैं, और ये फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स. द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. अ चाइल्ड लिफ्टिंग हिज स्कूल बैग. Second is gravitational force, the force by which the earth pulls the object towards itself. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, ये फोर्स जो है बेटा ये एक्सर्ट किया जाता है अर्थ से. अर्थ इस फोर्स को एक्सर्ट करता है, और ये क्या, अर्थ क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये आपका क्या है, अर्थ है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, और उस फोर्स को कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स. बॉल कमिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल. एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट, थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स. थर्ड क्या है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वहां पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय two surface in contact with each other, like for an example, movement of wheel on road. Fourth is mechanical force, the force applied to use simple machine. ऐसा फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं सिंपल मशीन को यूज करने के लिए उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स. फॉर एन एग्जाम्पल, यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर टू कट पेपर. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक फोर्स. देखो ये रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना, रबर बैंड को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब पढ़ते हैं इलास्टिक फोर्स क्या है. द फोर्स दैट अराइजेज व्हेन सॉरी बच्चों, व्हेन अ डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट tries to return to its original shape. Sixth is magnetic force, the force exerted by the magnet. ऐसा फोर्स जो एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है और अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ
किसको? आयरन नेल को। ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक force. Seventh is electrostatic force. Electrostatic force क्या है? The force exerted by electric charges which develop when one object is rubbed against the other. Example is charged hair. Eighth. एट्थ क्या है? buoyant force. ठीक है, पहले तो आप ये बोलना सीखिए. क्या बोलेंगे इसको? buoyant force. The upward push of water on an object floating on it or floating in water, this is known as buoyant force. For example, a ball floating on the water is the example of buoyant force. Now think and discuss. You have to think it, है ना? First think, then answer it to yourself or otherwise write somewhere so that you can remember it. What would happen if friction force did not exist? क्या होगा जब फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप इसको खुद से ढूंढिए और आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको कहीं एक पेपर में लिख के भी रख लीजिए, है ना? Now get it right. Gravitational force and gravity are two different terms, है ना? Gravitational force और gravity क्या है बेटा? दो अलग अलग terms हैं. जैसे कि gravitational force is the force of attraction that exists between two objects in the universe. However, gravity of Earth is the force that exists between the earth and an object which pulls the object towards the center of the earth. ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने. ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना? Hope so. This video was very interesting. You have learned many things in this. Now the next topic I will be covering it in the part 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, ये आपका पार्ट 1 का वीडियो है बेटा, और पार्ट 2 का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू बच्चों.